अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये एक पोइम है जिसका नाम है केश बर्ड और इस पोइम को लिखा है माया एंग्लो ने। तो आइए सबसे पहले हम इसका वर्ड बैंक सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है लॉन्ग फॉर, नंबर 2 करंट, नंबर 3 क्लिप्ड, नंबर 4 डिस्टेंट, नंबर 5 डाउनस्ट्रीम, नंबर 6 टिप्स, number 7 freedom, number 8 nightmare, number 9 grave, number 10 worms, number 11 trade winds, number 12 singing trees, number 12 singing trees, number 13 breeze, number 14 bars of rage, number 15 seldom, number 16 trill, number 17 fearful, number 18 claim, number 19 leaves, नंबर 28 स्टॉक्स। स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। हमारे पास ए से लेकर जी तक 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनके आंसर्स मैं आपको नोट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द फ्री बर्ड डू वाइल फ्लाइंग इन द एयर? आंसर, फ्री बर्ड स्लीप्स ऑन द बैक ऑफ फ्री एयर एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम्स टिल द एयर करंट एंड्स। Question number 2, how does the caged bird pass its time in the cage? Answer, the caged bird sings with fearful voice in the cage for freedom. Question number 3, are both birds singing the same song? What is the difference between their songs? Answer, no, the birds are not singing the same song. Free bird song is the song of happiness, joy and freedom, whereas the song of caged bird is for freedom, anger, fear and scream. Question number 4, write a character sketch of a free bird and a caged bird. Answer, free bird leaps on the back of wind, has freedom to go anywhere, to do anything, endless opportunities, traveling with breeze, eating fat worms at any time, achieve his dreams anytime. Caged birds is in cage, cannot fly easily, no opportunities to see beyond cage, trapped, clipped wings, feet tied, can only sing freedom song in fearful voice, highly angered but helpless. Question number 5, what does the poet mean by clipped wings and tied feet? Answer, clipped wings means trimming a bird's wings or feathers so that they cannot fly. In this poem, the poetess used clipped as metaphor for the systematic forms of oppressions which prevent class mobility. Tied feet is also a metaphor and indicates lack of liberty and distressed life of Black American. In contrast, is their white counterparts. It also depicts the limitations put on them, miserable life, ill treatments of Black Americans. Question number 6. The poetess has used powerful metaphors in this poem. What is meant by these two metaphors? Bars of rage, grave of dreams. इन दोनों मेटाफोर्स के बारे में हमने बताना है कि पोइटिस का इन दोनों मेटाफोर्स को यूज़ करने का क्या मकसद है, जिसमें है बार्स ऑफ रेज और ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। आंसर, बार्स ऑफ रेज. Bars of rage are the bird utmost frustration and anger at his confinement in the cage with clipped wings and tied feet. The poetess pointed out about the oppression, racism, abuse, lack of liberty of Black Americans in American society. Grave of dreams. It means the people. The birds represent many dreams and ambitions of their life, but all these were killed by the society and oppression. So the bird stands upon the grave of these dreams, as remembering them that these dreams will never come true till the time the bird is in cage and the Black Americans are under these limitations and oppressions. Students, इसका जी पार्ट जो है उसमें मेन आइडिया और समरी ऑफ द पोएम हमने लिखनी है, तो वो आप अपने पास नोट कर लीजिए। मेन आइडिया ऑफ द पोएम केज्ड बर्ड. Central idea of the poem is that the poetess wants to show that how Black Americans were treated and they tried to be free, or any race or person facing such type of discrimination anywhere trying to be free and get freedom. The Caged Bird poem is a metaphor for those held down and denied the basic amenities of life in our society. This poem speaks about hope by the song of Caged Bird, and people with similar experience must be treated in the same way. Summary of the poem Caged Bird.
A free bird flies on the wind as floating downstream, and bird dips its wings in the orange sunlight and dares to call the sky his own. Contrary, a bird in cage moves angrily and silently and can barely see through cage bars. His wings are cut so he cannot fly, and his feet are tied together. So he opens his throat to sing. The caged bird sings fearfully, but still wants that his song be heard far away to distant hills, because the bird sings about freedom. The free bird thinks about another breeze and about the global winds that blow and make the trees sound as they are singing, and also thinks of fat worm to be eaten on the lawn in the early morning. But a caged bird stands on the grave of his dead dreams and screams for the nightmare. Students, on page number 82 we have a task in which we have to make the sentences. We have some words and meanings. The task is use the given words in your own sentences and share with your friends too. वर्ड्स और मीनिंग्स हमारे पास मौजूद हैं. अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं. नंबर 1, leap. The sentence is, the lion made a leap to hunt a deer. Number 2, dare. He would not dare look up while she was watching. Number 3, stalk. Hunters were stalking in thick wood jungles for hunting deers. Number 4, rage. He was shivering with rage. Number 5, trill. Some birds trill their songs. Number 6, distant. The mosque was not distant from her house more than a half kilometer. Number 7, scream. She tried to scream, but no sound came out. At page number 83, we have a task. Use 3 epithets you just created in your own sentences and share with your friends. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि epithet क्या होते हैं. Epithet is a descriptive literacy device that describes a place, a thing, or a person in such a way that it helps in making its characteristics more prominent than they actually are. Epithet एक ऐसी टर्म होती है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह की खसूसियत को बयान करती है, और वो खसूसियत तब हमारे पास वाज़ेह हो जाती है जब हम 2 अल्फाज को आपस में जोड़ने से उस चीज़ की खसूसियत को बयान करते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ ब्लू आइड बॉय, कि एक नीली आँखों वाला लड़का, या फिर सोने जैसी चमकती हुई चीज़, या फिर शहद रंग की ईंटें. अब हमारे पास 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए और बी. हमने इन दोनों को आपस में मिलाकर नए वर्ड्स बनाने हैं जिसको हम एपिथेट का नाम देंगे. सबसे पहले हमारे पास डर्ट कोटेड है, और इसकी एग्जांपल जो हमारे पास एपिथेट में दी गई है वो है डर्ट कोटेड बूट्स, यानी कि मट्टी से भरे हुए बूट्स. इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट में है हनी कलर्ड. तो हनी कलर्ड के साथ अगर हम ब्रिक्स लगा देते हैं तो हमारे पास एक नया वर्ड बन जाता है जो कि किसी ईंटों की खसूसियत को बयान कर रहा है कि इसकी रंगत जो है वो शहद जैसी है. इसी तरह आइस डेक्ड है, जूल एंड क्रस्टेड रोब है. इसके बाद शुगर स्ट्रीवन क्यूब्स हैं, सन वाइट कलर है. अब ये जो हमने एपिथेट्स वर्ड्स बनाए हैं इनमें से कोई से 3 को हम अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि टास्क में हमें कहा गया है कि कोई से 3 सेंटेंसेस भी हमने क्रिएट करने हैं, तो आप अपने पास नोट कर लीजिए. इनमें से एक सेंटेंस जो मैंने बनाया है वो डर्ट कोटेड बूट्स पे बनाया है. वो है द सोल्जर वर वेयरिंग डर्ट कोटेड बूट्स. नंबर 2 मैंने हनी कलर्ड ब्रिक्स पे बनाया है सेंटेंस. द हाउस वॉज बिल्ड बाय हनी कलर्ड ब्रिक्स. नंबर 3 जो है वो मैंने शुगर स्ट्रीवन क्यूब्स पे बनाया है. द किचन वॉज फिल्ड विद शुगर स्ट्रीवन क्यूब्स फॉर मेकिंग ऑफ ड्रिंक्स. नेक्स्ट टास्क जो है वो पेज नंबर 84 पे है. सबसे नीचे 2 टास्क दिए गए हैं. जो टास्क नंबर ए है उसमें राइमिंग वर्ड्स पूछे गए हैं. हमारे पास ऊपर लेयर एक पोएम दी गई है, इसमें से हमने राइमिंग वर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन करना है. राइमिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके बोलने की आवाज़ जो है वो एक जैसी महसूस हो, जैसे कि केयर, स्टेयर, बाउस, काउस, पास, ग्रास, डिलाइट, नाइट, ग्लांस, डांस, कैन, बिगैन, केयर एंड स्टेयर. बी टास्क है राइट 5 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. इनमें से कोई से 5 जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको हमने लिस्ट डाउन करना है. इनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किए हुए हैं. एट पेज नंबर 85 वी हैव अ टास्क जिसमें हमारे पास एक पोएम दी गई है, माई पपी पंच्ड मी इन द आई,
और इसमें से हमने अंडरलाइन करने हैं एलिट्रेटिव वर्ड्स और सर्कल करना है एजोनेंट वर्ड्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिट्रेटिव और एजोनेंट्स के जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं। Alliteration is when a writer repeats the consonant sounds at the beginning of words. For example, in the given poem, My puppy punched me in the eye, the words puppy punched are alliterative because they both begin with P. जब किसी पोएम में दो वर्ड्स एक लेटर से स्टार्ट हो रहे होते हैं तो उनको हम एलिट्रेशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको पोएम में बता देती हूँ। और सेकंड जो डेफिनेशन है वो हम एजोनेंस की पढ़ेंगे। एजोनेंस इज़ व्हेन अ राइटर रिपीट्स द वॉवल साउंड इन अ स्ट्रेस सिलेबल्स ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल इन द लाइन My rabbit wagged my ear, the words rabbit wagged are an example of assonance because they both contain a short a sound on the stress label. जब कोई दो वर्ड इस तरह के आ रहे होते हैं जिनको बोलते हुए वॉवल्स जो हैं वो बिल्कुल शॉर्ट सा साउंड देते हैं तो उनको हम एजोनेंस कहते हैं। अब हम इस टास्क में पोएम के अंदर जो एलिट्रेटिव हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और जो एजोनेंट है उनको सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में पपी पंच जो है, दोनों चूँकि पी से स्टार्ट हो रहे हैं, इनको हम एलिट्रेटिव का नाम देंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे। थर्ड लाइन में फेरट और फ्राइटफुल जो है इनको भी अंडरलाइन करेंगे और इसके बाद सिक्स लाइन में किटन और किक्ड को अंडरलाइन करेंगे। और इसके बाद जो एजोनेंट हैं उनमें हम सर्कल लगाएंगे, जैसे कि सेकंड लाइन में रैबिट और वैक्ट है, इसके बाद फ्लिप्ड और अपसाइड है और नेक्स्ट हैमस्टर और स्लैम्ड है। पेज नंबर 86 पे हमारे पास एक वेन डायग्राम दी गई है जिसमें हमने केज बर्ड और जो फ्री बर्ड है उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। अब मेरे पास चूँकि जगह कम थी तो मैंने बुक के ऊपर ही साइड पे छोटा करके इसको लिख लिया है। जो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, एक फ्री बर्ड के और एक जो पिंजरे में रहने वाला बर्ड होता है, वो क्या क्या हैं। दे बोथ आर बर्ड, फीट, ईट, सिंग, लीप, विंग, फ्लाई, ड्रीम, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें इनमें कॉमन है। लेकिन अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। जो केज्ड बर्ड होता है दैट कुड नॉट लीप, it cannot travel, limited things, stay in cage, sing freedom songs, tied feet, and it is always angry. लास्टली हमारे पास कुछ ईडियम्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स भी बताए हुए हैं। हमने इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, तो इन सेंटेंसेस को आप अपने पास नोट कर लीजिए। नंबर 1, अ बर्ड्स आई व्यू। सेंटेंस, फ्रॉम द एरोप्लेन वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ कराची। Number 2, as the crow flies. The trip from Murree is 40 miles away from Islamabad as the crow flies. Number 3, a rare bird. The beauty of the model has made her a rare bird. Number 4, bird of a feather. Birds of a feather flock together. Number 5, an early bird. The early bird catches fat worms in the lawn. स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने यूनिट नंबर 7 को अपने पास नोट कर लिया होगा और आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ भी आई होगी। आप इसको ज़रूर याद भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करें और शेयर लाजमी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि ये सारे लेसन्स पहुंच सकें। अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी करें। और मैं काफ़ी दिनों से कोई लेसन अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशूज़, तो आगे इंशाल्लाह बाकी के लेसन्स भी अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।